24K Gold Night Coat 70,600 ppm with real gold. Recover my skin's golden days overnight and wake up every morning with rejuvenated skin. Atomy Absolute 24K Gold Night Mask. Wanted to give you the world. Fresh. Hyper. Silky hydration. Hydra Capture Microcapsule Ultra Multivital Beauty Power Advanced Flower Water Base Kilo on Moisture. All of this means awesome. NutriCapsule Essence Super Dual Step Brightening Skin Boosting. Yeah, awesome. Just awesome. But it's too long to say all this. Atomy Hydra Brightening Skincare. Hydra for moisturizing, brightening for lighter skin. Atomy Hydra Brightening Skincare Set. Your skin full of hydration and extra brightness. This will be your new favorite item. Wanted to give you the world. Fresh. Hyper. Silky hydration. Hydra Capture Microcapsule Ultra Multivital Beauty Power Advanced Flower Water Base Kilo on Moisture. All of this means awesome. NutriCapsule Essence Super Dual Step Brightening Skin Boosting. Yeah, awesome. Just awesome. But it's too long to say all this.
Atomy Hydra Brightening Skincare. Hydra for moisturizing, brightening for lighter skin. Atomy Hydra Brightening Skincare Set. Your skin full of hydration and extra brightness. This will be your new favorite item. Seize my golden days. Atomy Absolute 24K Gold Night Mask. The Atomy Absolute 24K Gold Night Mask, which restores the skin overnight, creating a moisture barrier with the ideal balance of moisture and nutrition that improves wrinkles and helps to brighten skin tones. Atomy's proprietary technology. The 24K Gold Night Coat 70,600 ppm with real gold. Recover my skin's golden days overnight and wake up every morning with rejuvenated skin. Atomy Absolute 24K Gold Night Mask. Wanted to give you the world. Fresh. Hyper. Silky hydration. Hydra Capture Microcapsule, Ultra Multivital, Beauty Power Advanced, Flower Water Base, Kilo On Moisture. All of this means awesome. NutriCapsule Essence, Super Dual Step, Brightening Skin Boosting. Yeah, awesome. Just awesome. But it's too long to say all this. Atomy Hydra Brightening Skincare. Hydra for moisturizing, brightening for lighter skin. Atomy Hydra Brightening Skincare Set. Your skin full of hydration and extra brightness. This will be your new favorite item.
wanted to give you the world. Fresh. Hyper. Silky hydration. Hydra Capture Microcapsule, Ultra Multivital, Beauty Power Advanced, Flower Water Base, Kilo on Moisture. All of this means awesome. NutriCapsule Essence, Super Dual Step, Brightening Skin Boosting. Yeah, awesome. Just awesome. But it's too long to say all this. Atomy Hydra Brightening Skincare. Hydra for moisturizing, brightening for lighter skin. Atomy Hydra Brightening Skincare Set. Your skin full of hydration and extra brightness. This will be your new favorite item. Seize my golden days. Atomy Absolute 24K Gold Night Mask. The Atomy Absolute 24K Gold Night Mask, which restores the skin overnight, creating a moisture barrier with the ideal balance of moisture and nutrition that improves wrinkles and helps to brighten skin tones. Atomy's proprietary technology. The 24K Gold Night Coat 70,600 ppm with real gold. Recover my skin's golden days overnight and wake up every morning with rejuvenated skin. Atomy Absolute 24K Gold Night Mask. Good evening, everyone. So I request everyone to come on to the video. Very good evening. कितने लोग अपनी स्किन को ग्लो देखना चाहते हैं? अपना स्किन का ग्लो, अगर आपका स्किन सेफ है कि नहीं आप जानना चाहते हो? Very good, excellent. Recording in progress. चलो तो आ जाओ वीडियो पे, देखेंगे क्या है अपना स्किन को कैसे सेफ रखना है और क्या क्या कर सकते हैं अपना स्किन को हेल्दी रखने के लिए। ये सब जानने के लिए आई वांट टू इंट्रोड्यूस एक वुमेन हु इज the Masters of Commerce in Bachelor of Education. So she is the proprietor of VB's Commerce Academy and she got a 20 plus years of experience in teaching. उनको 20 plus years का experience है teaching में और
हेल्थ चेक एक्सपीरियंस में 10+ years का एक्सपीरियंस है। जानना चाहते हो उनसे? बुलाएंगे उनको। हाँ, और असिस्टेंट प्रोफेसर रही कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, NH कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई में। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट she is the product trainer at Atomy India. बुलाएंगे उनको। So I introduce Vishaka Vidyadhar Bhatt to take up today. So we will know today. आज सुनेंगे इनके साथ क्या क्या सुनना है। हमारा स्किन सेफ है कि नहीं, अगर हमारा स्किन ग्लो कर रहा है कि नहीं, अगर कितना केयर करना है, क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, सुनना चाहेंगे? चलो बुलाएंगे। वेलकम विशाखा। थैंक यू सो मच माधवी मैम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस प्रोडक्ट सेलिंग सेशन में माधवी मैम की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपका सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यस, मैम ने सही पूछा, आप अपने स्किन केयर के बारे में क्या सोचते हो और क्या करना चाहते हो। आपकी स्किन अभी क्या है और इन फ्यूचर क्या हो सकती है, ये सिर्फ आप सभी के हाथ। हम बस आपको इसी के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहते हैं ताकि इस स्किन केयर के ट्रेनिंग के साथ या तो प्रोडक्ट के साथ, इसके नॉलेज के साथ आप अपने स्किन को भी एक हेल्दी स्किन बनाने के लिए इजीली एक अगला स्टेप ले सकते। ओके, तो स्किन केयर के बारे में तो हम बात करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, बट सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं आज हम लोग किस चीज के ऊपर बात करेंगे। और जब हम बात करते हैं स्किन केयर की, तो हमें क्या करना जरूरी होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगर हम एटॉमी इंडिया के बारे में सोचें, तो हमारे एटॉमी इंडिया का एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है जो मेरा सबसे फेवरेट है, एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। ये वर्ड इतने में खुद में इतने पावरफुल वर्ड्स है, ये आपको इंडिकेट करते हैं एटॉमी इंडिया के जो भी प्रोडक्ट है, इनका जो प्राइस है ये बहुत ही लो है एज कंपेयर टू देयर बेनिफिट। और ये उसके बेनिफिट्स है ना, तब तक आप इन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते, राइट, खुद के ऊपर इस्तेमाल करके इसका यूसेज नहीं देखते, तब तक आप कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते कि इसका क्वालिटी उनके प्राइस के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है। तो आज हम इसी ऐसे ही एक एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस वाले प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, और वो है हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट। तो इसके बारे में हम सोचेंगे कि हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट है क्या। ओके, तो अगर हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट के बारे में सोचते हैं, आई होप आपके सामने एक स्क्रीन दिख रहा होगा, पेज। शायद उसको फुल स्क्रीन करो। हाँ, वही चेक कर रही हूँ। नीचे है ना, इसको कर सकते। हाँ, कर रही हूँ। एक मिनट ना, कुछ थोडा प्रॉब्लेम आहे, एक मिनिट आतमध्ये मी व्हिडिओ ऑफ केले, मला ती स्क्रीन पूर्ण ओपनच नाही होत. हे बघ, शेअर केलं, हे ओपन केलं, शेअर केलं, स्क्रीन पूर्ण SPF ओपन झाला मला. त्यांच्याकडनं काय झालं असेल का? हाँ, विशाखा सुनो, हाँ, सुनो मैं बताती हूँ। ओपन करो, ओपन करो। हाँ, एक मिनट। हाँ, हाँ, अभी हो गया। वो बैकग्राउंड में सनस्क्रीन था ना, तो वो ओपन हो रहा है। नीचे माइनस है ना? यस, हो गया। थैंक यू मैम। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग एक बेहतरीन ऐसा प्रोडक्ट कि जो प्रोडक्ट हमें हमारा प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए हेल्प करेगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमी के हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट के साथ।
ये सेट है क्या और ये सेट आपके स्किन केयर के लिए किस तरह से यूजफुल है ना, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मली देखा जाए तो हमारे स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे यूवी रेज होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज है जो हमारे सन के रेज की वजह से, या तो आप जिस नॉर्मल आर्टिफिशियल लाइट में बैठते हो उनमें से भी बहुत सारे यूवी रेज निकलते हैं, एंड अल्टीमेटली यू नो इट वेरी वेल कि ये यूवी रेज आपके स्किन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करते ही है। ऑब्वियसली इनका तो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है। उसी के साथ एनवायरमेंट का एक और प्रॉब्लम है जो दिन ब दिन सालों न सालों बढ़ते जा रहा है, और वो है हमारा हाई टेम्परेचर। यस और नो? लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर आप इस साल देखोगे तो आपका हीट का जो टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, एंड ऑब्वियसली इस टेम्परेचर का भी हमारे स्किन के ऊपर इफेक्ट होता है। हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर एज वेल एज लो टेम्परेचर, दोनों के अपने अपने निगेटिव इम्पैक्ट है। नॉट दैट कि अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो स्किन को बेनिफिट होगा, नॉट लाइक दैट। दोनों के अपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे स्किन के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। उसी के साथ एनवायरमेंट में जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? वैसे तो आप सभी को पता है, नमी। एयर के अंदर, एनवायरमेंट के एयर के अंदर जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसको दमटपना भी बोलते हैं मराठी में, राइट? तो ये जो ह्यूमिडिटी है ना, ये ह्यूमिडिटी भी हमारे स्किन के ऊपर इफेक्ट करती है। किस तरह से? जैसे कि आपके एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब नमी बहुत ज्यादा है, तो इसका पहला रीजन होता है कि आपकी स्किन ऑयली फील करेगी, बहुत ज्यादा पसीना निकलेगा, बहुत ज्यादा वी कैन से दैट स्वेट निकलेगा, स्किन बहुत स्टिकी हो जाएगी। एंड उसी इनके वजह से, एंड उसी के साथ जो एनवायरमेंट में डस्ट है, पोल्यूशन है, ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से एंड स्टिकी एंड बहुत सारी ऑयली स्किन की वजह से आपके स्किन का एक कॉमन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और वो है हमारा पिंपल्स एंड एक्ने। ये प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस होते हैं। उसी के साथ अगर समझ लो यही जो हाई ह्यूमिडिटी अगर समझो लो ह्यूमिडिटी में कन्वर्ट हो जाए, बराबर है? मतलब क्या कि अगर लो ह्यूमिडिटी हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो एयर है ना तो वो ड्राई एयर है, एंड इस ड्राई एयर की वजह से हमारे स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? तो पॉइंट नंबर 1, ये जो ड्राई एयर है वो एयर आपके नॉर्मल स्किन के ऊपर, स्किन में जो वाटर लेवल है ना वो एब्जॉर्ब करता है, एंड इसकी वजह से हमारा फेस का स्किन भी ड्राई हो सकता है। एंड हम लोग बोलते हैं कि हमें ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है, राइट? हिचकिचाहट होती है या तो इरिटेशन होता है हमारे स्किन के अंदर। तो इस तरह से ह्यूमिडिटी हाई एंड लो, इन दोनों का हमारे स्किन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। उसी के साथ यूज एयर कंडीशनर, आजकल तो बहुत कॉमन बात है। पहले हम लोग ऑफिसेस में एसी यूज करते थे, अभी तो ईच एंड एवरी हाउस में एसी फैसिलिटीज अवेलेबल है बिकॉज ऑफ अगेन टेम्परेचर, राइट? तो ये एसी क्या स्किन के ऊपर इम्पैक्ट करता है? अगेन एसी की एयर आपके स्किन को ड्राई करती है। आप ऑब्जर्व कीजिए प्लीज, आप जहाँ पे भी बैठते हो एसी में ना, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी स्किन खींच रही है, स्किन के अंदर थोड़े बहुत इरिटेशन है। जैसे कि ठंडी में अगर विंटर सीजन रहेगा तो जो इरिटेशन फील होती है ना आपको, सेम इरिटेशन आपको एसी में बैठने के बाद भी फील हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है कि जिनकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये सारे प्रॉब्लम्स का हमारे पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है, और उसको हम लोग टू स्टेप सॉल्यूशन बोलते हैं, और वो है हमारा एकदम ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, दैट इज अ हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट। अब ये प्रोडक्ट हमें क्या बेनिफिट देता है उसके बारे में तो हम लोग सोचेंगे, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे। देखो आपके सामने जो स्क्रीन है ना, पीपीटी है, उसके ऊपर आपको पहला तो पॉइंट क्लियरली दिखाई देगा कि हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड वर्डिंग इज वेरी सिंपल वर्डिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाइड्रेटेड का मीनिंग एक सिंपल वर्ड में अगर आपको मैं बोलूं तो आपके स्पेस स्किन में जो वाटर लेवल होता है ना, दैट इज नोन एज अ हाइड्रेशन। एंड ये हाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट चेंज होते रहता है, बट उसको मेंटेन रखना, एंड इसके लिए वी हैव टू यूज द स्किन केयर प्रोडक्ट। तो हम इसी हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर सेट है। अब ये करता क्या है, टू स्टेप ये केयर कैसे करता है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ना इसमें सिनर्जी इफेक्ट है। आप वर्डिंग देखोगे कि व्हाट इज द सिनर्जी इफेक्ट। मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करूं तो नॉर्मली 1 + 1 2 होता है, बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब होता है कि 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू 2 बट इट इज ग्रेटर देन 2। इससे मिलने वाले बेनिफिट डबल नहीं है, डबल से ज्यादा है। इसको टू स्टेप प्रोडक्ट बोला गया है। उसका रीजन ये है कि इसमें दो प्रोडक्ट आपको यूज करना है एट अ टाइम। दैट इज द फर्स्ट वन इज अ कैप्सूल एसेंस, and second one we can say that cream. Okay, so in
दोनों के अपने बेनिफिट आपको सिनर्जी इफेक्ट कैसे देंगे वो हम समझने वाले हैं। ओके, अब देखते हैं कि सबसे पहले ये इफेक्ट क्या क्या मिलता है आपको, क्या बेनिफिट्स होता है। सबसे पहले इसका जो ये प्रोडक्ट हमें हेल्प करता है जितना चाहिए उतना हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए। ये बहुत जरूरी है, जितना चाहिए उतना, नॉट लेस एंड नॉट एक्सेस। लेस हाइड्रेशन रहेगा तब भी प्रॉब्लम है, एक्सेस हाइड्रेशन भी आपके स्किन को नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है। तो जितना जरूरी है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट आपको हाइड्रेशन मेंटेन करता है, ये आपके स्किन को क्रिस्पी फील देता है। अभी क्रिस्प इज व्हाट, ये क्या होता है, एक ऐसा फील है ना कि जहाँ पे आपको स्टिकनेस नहीं है, चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं है, बराबर है। और ये हम लोगों की स्किन को नॉर्मल रखती है। आपके स्किन के ऊपर चिपचिपाहट तो दिखेंगी नहीं ऊपर से, पर अंदर के साइड में ना एक हेल्दी स्किन आपको मेंटेन को मिलेगी। तो इस तरह से आपको बेनिफिट देता है। एंड ये हम लोगों के स्किन को लॉन्ग पीरियड के लिए, बहुत ही ज्यादा टाइम के लिए मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट बेनिफिट है। उसी के साथ फास्ट एब्जॉर्प्शन है, मतलब स्किन में बहुत इजीली फटाफट एब्जॉर्ब हो सकता है, ये इसका एक बेनिफिट। उसी के साथ इसके अंदर ना ब्रीच ट्री एंड विटामिन ट्री का फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है। अब ये ब्रीच ट्री होता क्या है, शॉर्ट में बता दूं, आगे तो डिटेल में समझेंगे हम लोग। मैं आपको बताऊं, ब्रीच ट्री जैसे कि नॉर्मल ट्री के अंदर एक वाटर लेवल होता है, उसी तरह से ये जो ब्रीच ट्री एक ट्री है, उसके अंदर के एक्सट्रैक्ट को सैप बोला गया है। ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसमें नेचुरल शुगर है। ये ट्रांसपेरेंट होगा, इसी के साथ इसमें एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब एक बेस्ट अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट है। और ये स्पेसिफिकली स्किन केयर के लिए हम लोग रेगुलरली यूज करते ही है। एंड जैसे कि इसमें ये सोल टोनर में यूज किया जाता है, स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट है, लाइक टोनर है, सीरम है, इन सब में यूज होता है। इसका बेनिफिट हमारा है सबसे पहला वाला, हाइड्रेशन लेवल इंप्रूव करना, एज वेल एज हमारे स्किन को फ्रेश एंड हेल्दी फील देना, स्मूथ करना, एंड हमारी स्किन को काम रखना, शांत रखना, विदाउट इरिटेशन रखना, ये इसके बेनिफिट है, राइट। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, जिसका 2 वे बेनिफिट हम लोगों को मिलने वाला है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, देखो कैप्सूल एसेंस दिखता किस तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट बॉटल है। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे ना, आपको ब्लू जेल दिखाई दे रहा है, यस। और इस ब्लू जेल के साथ इसमें ना छोटे छोटे, आप ऑब्जर्व कीजिए, डॉट्स है, राइट। ये डॉट्स है ना, ये माइक्रो कैप्सूल है। अब ये ब्लू जेल इज व्हाट एंड माइक्रो कैप्सूल इज व्हाट, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले माइक्रो कैप्सूल्स है जो उसको क्रिएट करते हैं मॉइस्ट एंड वाइब्रेंट स्किन को। अब देखो, ये एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, इसके अंदर का जो ट्रांसपेरेंट ब्लू जेल है ना, ये ना टोनर एज वेल एज इसेंस, इन दोनों का काम करता है। अब ये टोनर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, एंड इसेंस का काम क्या है। टोनर ये एक वाटर बेस्ड सोल्यूशन है, ओके। ये स्किन केयर के प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। जब आप स्किन केयर के प्रोडक्ट की बात करते हो ना, तो 2 बेस आते हैं, एक वाटर बेस आता है, एक ऑयल बेस आता है, और ये प्रोडक्ट वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है। कब यूज करना चाहिए, नॉर्मली इसको क्लिनजिंग के बाद यूज करते हैं, बिकॉज क्लिनजिंग की वजह से समटाइम हमारी जो स्किन का जो अल्कलाइन है, अल्कलाइन स्किन होती है, एसिडिक स्किन में मतलब कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका जो पीएच लेवल है वो मेंटेन करना जरूरी होता है, एंड इसको मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिकली टोनर यूज करते हैं। फेस की स्किन का पीएच लेवल नॉर्मली 4.7 to 4.75 ऑन एन एवरेज होना चाहिए, राइट, एज ए जनरल नॉलेज। तो बस इतना मेंटेन करने के लिए हम लोगों को ये टोनर हेल्प करता है, इसलिए आफ्टर क्लींजिंग आपको टोनर कंपल्सरी यूज करना चाहिए। ये हो गया टोनर। अब व्हाट इज द एसेंस, टोनर के अपने बेनिफिट अलग है एंड एसेंस के अपने बेनिफिट अलग है। जैसे हम लोग जब फूड कंज्यूम करते हैं, राइट, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी है, प्रोटीन्स भी जरूरी है। ओनली कार्ब्स नहीं चलेंगे या तो ओनली प्रोटीन्स भी नहीं चलेंगे, दोनों रिक्वायर्ड है। उसी तरह से स्किन केयर में हम लोगों को टोनर एज वेल एज एसेंस, ये दोनों यूज करना जरूरी है। तो यहाँ पे श्रुति की बात क्या है पता है दोस्तों, एक ही प्रोडक्ट में आपको ये दोनों को बेनिफिट मिलने वाले। तो टोनर तो हो गया, अब एसेंस इज व्हाट, ये अगेन एक वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर ना एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, आपकी स्किन का हेल्दीनेस जो बूस्ट करते हैं, इलास्टिसिटी इंप्रूव करते हैं। एसेंस एक एंटी एजिंग कंसेप्ट है, मतलब हमारा जो एजिंग है उसको रिड्यूस करने को, उसको रोकने को हेल्प करता है। इसके वजह से हमारे स्किन का जो टेक्सचर है ना वो इंप्रूव होता है। एंड ये एसेंस एज अ प्राइमर काम करता है। प्राइमर इज अ वन टाइप ऑफ कोट, वन टाइप ऑफ बेस विच इज क्रिएटेड बिफोर अप्लाइंग मेकअप। आप कोई भी मेकअप मटेरियल जब अप्लाई करना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये एसेंस आप अप्लाई करोगे ना, तो ये आपके स्किन के ऊपर एक प्राइमर क्रिएट करता है, जो हमारे रिंकल्स या तो पोर्स है उसको पील करके एक स्मूथ का टेक्सचर देता है। इसलिए एसेंस जरूरी होता है, राइट। एंड एज वेल एज मतलब मेकअप करने से पहले आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपके एक प्रोडक्ट में टोनर एंड एसेंस, इन दोनों का बेनिफिट्स आपको मिलेगा, एंड वो है ब्लू जेल के अंदर।
तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा सिचुएशन। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया टोनर है, टोनर हमें हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, इसेंस है बेस क्लियर करता है, राइट, एंड डीप हाइड्रेशन बूस्ट करता है, स्किन हेल्दी बनाता है। तो इसका यही कंसेप्ट है कि आपको ये हाइड्रेशन देगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। हाइड्रेशन इज अ मॉइस्चर, हाइड्रेशन इज अ वाटर लेवल, मतलब मॉइस्चराइज करता है स्किन को। फिर नरिशमेंट का मतलब होता है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू यू, आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है, तो नरिशमेंट वी कैन से दैट। तो इस प्रोडक्ट में एक बेस है, एक माइक्रो कैप्सूल है। बेस इज अ ब्लू ट्रांसपेरेंट लिक्विड एंड माइक्रो कैप्सूल इज अ व्हाइट जो स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है ना, वो माइक्रो कैप्सूल है। एंड इन दोनों को यूज करेंगे तो अल्टीमेटली वी गेट अ सिनर्जी इफेक्ट, इसको हम लोग सिनर्जी इफेक्ट बोल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हमें यूजफुल रहेगा। सबसे पहले तो इफ यू ऑब्जर्व, आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है। माइक्रो कैप्सूल के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में चाहिए तो बता सकती हूँ कि माइक्रो कैप्सूल ये किस तरह से बेनिफिशियल है। माइक्रो कैप्सूल वर्डिंग से ही पता चलता है आपको, माइक्रो छोटे छोटे कैप्सूल से, और ये एक ना प्रोटेक्शन लेयर है आपके न्यूट्रिएंट्स। स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट में विटामिन ई है, और इस विटामिन ई को प्रोटेक्ट करने का काम ना इस माइक्रो कैप्सूल ने किया है। तो ये विटामिन ई सेफली आपके स्किन तक पहुंचाना, इसका काम है माइक्रो कैप्सूल का, ये स्पेसिफिक वर्क है। ओके, तो जो लिक्विड है वो आपको इफेक्ट देता है हाइड्रेशन का, मॉइस्चराइजेशन का, एंड जो माइक्रो कैप्सूल है ना वो आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अब देखते हैं हम इसके अंदर क्या है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, जैसे कि एक्वा मॉइस्चराइजर टोनर एंड एक्वा मॉइस्चर सीरम। टोनर के बेनिफिट्स तो हम लोग ने देख लिया। एक्वा मॉइस्चर मींस हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं अगेन इट इज अ वाटर बेस्ड, पर जो वाटर इसमें यूज किया गया है ना वो वाटर मिनरल रिच वाटर यूज किया गया है। इसके अंदर ना 7 स्पेसिफिक कुछ इंग्रेडिएंट है, जैसे कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड है, हाइलोरोनिक एसिड के भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जो डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। उसी के साथ ग्लिसरीन है, सेंटल एक्सट्रैक्ट्स है, राइट ना, एलोवेरा जेल मिक्स है। तो ये सब मिलकर हम लोग एक्वा मॉइस्चर टोनर देख सकते हैं। एंड एक्वा मॉइस्चर जो सीरम है ना, ये सीरम अगेन वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है, एंड इसका मेन काम है हाइड्रेशन को बूस्ट करना। तो ये दोनों को यूज करके हमारा बनता है प्रोडक्ट दैट इज अ कैप्सूल ई। ओके, नेक्स्ट। अब हमारे सामने दिख रहा है नरिशिंग विद द माइक्रो कैप्सूल। जैसे मैंने अभी बोला था कि माइक्रो कैप्सूल ये हम लोगों को नरिशमेंट देता है, हमारे स्किन को पोषण देता है। हम लोगों ने देखो हमारे शरीर का पोषण तो सुना था कि हमें हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना चाहिए, बट यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा है कि हमें हमारे स्किन के लिए भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है, एंड इसके लिए इस प्रोडक्ट में अवेलेबल है माइक्रो कैप्सूल, जो हमारे स्किन को अच्छी तरह से पोषण देते हैं विद द हेल्प ऑफ द विटामिन ई। जैसे मैंने बताया कि माइक्रो कैप्सूल ही क्यों, आप बोलेंगे विटामिन ई तो डायरेक्टली भी डाल सकते थे, उसका एक स्पेसिफिकली रीजन है। विटामिन ई जब एक सिंगल एनवायरमेंट में आप रखते हो खुली जगह पे, तो उसके जो बाकी के एनवायरमेंट के फैक्टर्स है, या तो एयर है, लाइट है, आप कितने टाइम के लिए उसको खुला छोड़ते हैं, उसके उसके अकॉर्डिंग विटामिन ए की जो एनर्जी है, पावर है, वो कम होती है, राइट। तो आपके स्किन के अगर उसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो उसका आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस माइक्रो कैप्सूल के अंदर विटामिन ए के एनर्जी को प्रोटेक्ट किया है, और जब आप आपके स्किन को इसको अप्लाई करते हो तो ये कैप्सूल्स अपने स्किन के ऊपर ब्रेस्ट होते हैं, मतलब स्प्रेड होते हैं, एंड विटामिन ए का एकदम 100% बेनिफिट आपके स्किन को प्रोवाइड होता है। तो इस तरह से ये माइक्रो कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे 3 कंटेंट्स है, क्या क्या कंटेंट्स है वो देखते हैं। सबसे पहला वाला है सेल्यूलोज। व्हाट इज दिस सेल्यूलोज? सेल्यूलोज है क्या? ये है मॉइस्चराइजर, स्पेसिफिकली वी कैन से दैट मॉइस्चराइजर का एक लेयर है, अप्लाई करेंगे तो आपके स्किन के ऊपर जमा हो जाता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही सेफ रखते हैं आपके स्किन को, बहुत स्टेबल रखते हैं, राइट। एंड उसी के साथ ये हो गया सेल्यूलोज है। अब देखते हैं सेकंड वाला मैनिटॉल। मैनिटॉल क्या करता है ना, ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो नॉर्मली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इंक्लूड होता है। ये आपके स्किन का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करता है। ओके, सेल्यूलोज आपके स्किन को हाइड्रेशन लेवल प्रोवाइड करता है, एंड मैनिथॉल वो मेंटेन करता है, मतलब रखने के लिए हेल्प करता है। इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो हमारे स्किन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए मदद करता है। तो इस तरह से ये बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन ई, जो कि हमारे स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई, जो हमारे स्किन को पोल्यूशन है, सन है, उससे प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रेशन लेवल देता है। फिर उसी के साथ एक्सटर्नल डैमेज से कंट्रोल, मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एंड हमारे स्किन को रिपेयर करता है। तो इस तरह से वी कैन से दैट माइक्रो कैप्सूल इज द सोर्स ऑफ विटामिन ई।
और इस विटामिन ए के हमारे स्किन के ऊपर सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो कैप्सूल। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बहुत मतलब इस तरह से ये इसकी एक खासियत है कि माइक्रो कैप्सूल क्यों है, उसके रीजन है, राइट? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सिनर्जी ऑफ द बेस एज वेल एज माइक्रो कैप्सूल। अब तक आप समझ गए होंगे कि बेस का मतलब ही है लिक्विड जेल, ओके, एंड माइक्रो कैप्सूल्स का मतलब व्हाइट पार्टिकल प्रोडक्ट के अंदर के। अब ये बेस एंड माइक्रो कैप्सूल्स किस तरह से दोनों मिलकर काम करते हैं वो देखते हैं। बेस के अंदर ना बीटेन है, और ये बीटेन करता क्या है, ये एक नेचुरल सब्सटेंट है। बीटेन इज इंग्रेडिएंट, घटक, इट इज बीट रूट के अंदर का एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि अदरवाइज स्पेनिश में भी होता है, होल ग्रीन में होता है, और ये हमारे स्किन को ना सुपर हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। आप समझ रहे हो, सुपर हाइड्रेशन मतलब एक्स्ट्रा वाला हाइड्रेशन आपके स्किन को प्रोवाइड करता है। एंड उसी के साथ वी कैन से दैट ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। और ना आपको पता है ड्राई स्किन है या तो ओवर हाइड्रेशन स्किन है, दोनों के लिए एक सीक्रेट है। सभी में होता है, किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की स्किन में ऑलरेडी वाटर लेवल ज्यादा है, बहुत ऑयली होती है, तो दोनों के लिए हाइड्रेशन मेंटेन के लिए एकदम बैलेंस करता है। एंड ये आपके स्किन को मतलब एंटी एजिंग इफेक्ट है। नॉन ग्लोसी मतलब ऐसा शाइन नहीं करता, एकदम मैट फिट आपको इफेक्ट देता है। ओके, तो इस तरह से बीटेन एक इंग्रेडिएंट है। उसी के साथ इसके अंदर ना स्मॉल मॉलिक्यूल्स है हाइलोरोनिक एसिड। अब अभी मैंने बताया था कि हाइलोरोनिक एसिड के बारे में बाद में जानेंगे। मैं आपको बता दूं, हाइलोरोनिक एसिड ये एक ऐसा एसिड है, इसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है ना, इसमें ना वाटर होल्डिंग की एक अच्छी खासी कैपेसिटी होती है। हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 1000 टाइम्स है। जैसे कि अगर हाइलोरोनिक एसिड 1 ग्राम है तो 1 ग्राम का हाइलोरोनिक एसिड 1000 टाइम्स का वाटर लेवल मेंटेन कर सकता है या तो होल्ड कर सकता है, राइट? 1 ग्राम का हाइलोरोनिक एसिड 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर अपने स्किन में होल्ड कर सकता है। ओके, तो सोचिए कि अगर ये इस प्रोडक्ट में है और वही हाइलोरोनिक एसिड जब आपके फेस स्किन में अप्लाई हो रहा है, तो ये एसिड करता क्या है, आपके शरीर के अंदर से वाटर या तो एनवायरमेंट जो है आपके आजू बाजू, उसमें से आप वाटर एब्जॉर्ब करके आपके स्किन में होल्ड करता है, और जो आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए हेल्प करता है। ये एक नेचुरल सब्सटेंट है एंड नॉर्मली सारे स्किन के प्रोडक्ट में इसको यूज किया जाता है, राइट है? हमारे इसमें ये प्योर फॉर्म में अवेलेबल है। एज वेल एज इसके अंदर अभी देखते हैं, ये देखा हम लोगों ने बेस मतलब लिक्विड जेल में क्या क्या है। अब देखेंगे कि माइक्रो कैप्सूल्स में क्या क्या है। वो तो पहले बता दिया, विटामिन ई है, सेल्यूलोज है एंड मेगाथॉल है, और इन दोनों से मिल के हमारा बन गया पावरफुल हाइड्रेशन वाला एक मॉइस्चराइजर देने वाला एंड स्किन के मॉइस्चराइजर लेवल को लॉक करने वाला कैप्सूल एसेंस। ओके, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारे स्किन के हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजर एंड नरिशमेंट इन तीनों के ऊपर काम करता है। ओके, अब हम देखते हैं 2 स्टेप प्रोडक्ट था, तो दिस इज योर सेकंड स्टेप, दैट इज अ हाइड्रा ब्राइटनिंग। अभी एटोमिक का हाइड्रा ब्राइटनिंग काम करता क्या है वो पहले देखते हैं। सबसे पहले ना इसमें क्या इंक्लूड है, बहुत ही बोलते हैं ना एकदम क्यूट सा दिखने वाला कलर है, देखो पिंकिश कलर है। ओके, ये हमारे स्किन को मॉइस्ट एंड वाइब्रेंट बनाता है एंड इसके लिए हेल्प होता है विटामिन B12। विटामिन B12 नेचुरली ना पिंक कलर में आता है, इसको पिंक एनर्जी बोला जाता है। ओके, तो विटामिन B12 इसमें इंक्लूड है। और ये विटामिन B12 करता क्या है, सबसे पहले तो हमारे स्किन को ना ब्राइटनिंग बनाने का काम करता है। देखो स्पेसिफिकली ये हमें हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, कैप्सूल एसेंस यूज कर रहे हो और उसके साथ क्रीम यूज करेंगे, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, कैप्सूल एसेंस हाइड्रेशन देगा, मॉइस्चराइजर एंड कुछ नरिशमेंट देगा, एंड उसी के साथ ये क्रीम अगेन कुछ न्यूट्रिएंट्स देके आपके स्किन को लॉन्ग लास्टिंग के लिए हमारा मॉइस्चराइजिंग लेवल एंड हाइड्रेशन लेवल लॉक करता है, राइट? तो ये कंप्लीट बैरियर जनरेट करता है आपके स्किन के ऊपर। अब देखिए विटामिन B12 है जो कि नॉर्मली एक पिंकिश कलर में आता है। आपने अगर किसी ने प्रोडक्ट यूज किया रहेगा और आप इसको ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर ना इसका नेचुरल कलर पिंक है। दिस इज नॉट आर्टिफिशियल कलर, नेचुरल कलर थोड़ा पिंकिश है। उसका रीजन ये है कि इसके अंदर विटामिन B12 इंक्लूड है। ओके, तो विटामिन B12 के क्या बेनिफिट है, स्किन का केयर ऑब्वियसली, फिर स्किन को रिपेयर करना, जहां जहां आपकी स्किन डैमेज हो रही है, ज्यादा रिंकल्स है तो उनको रिपेयर करने का काम करती है, ब्राइटनिंग का इफेक्ट देती है। अगर रेगुलर प्रोडक्ट आप यूज करते हो, देखो मैंने वर्ड यूज किया रेगुलर, वो नहीं करेंगे तो आपको कोई प्रोडक्ट का इफेक्ट नहीं मिलेगा। ओके, रेगुलर प्रोडक्ट यूज करते हो तो धीरे धीरे आपको आपके स्किन के ऊपर ब्राइटनिंग का इफेक्ट आएगा एंड एक हेल्दी ग्लो आपकी स्किन के ऊपर जनरेट होगा, एंड ये सारी चीजें सिर्फ विटामिन B12 से पॉसिबल। अब साइड में देख रहे हो प्लस अल्फा। अल्फा इज व्हाट, अल्फा मतलब हमारा एक्स्ट्रा केयर।
बराबर ना। अल्फा को हम लोग बोल सकते हैं कि हमें एक एक्स्ट्रा केयर दे रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑब्वियसली एक्स्ट्रा बेनिफिट में कुछ न्यूट्रिएंट्स है, देन वी कैन से दैट कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरह से हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल है। एक्स्ट्रा केयर हम लोग बोल सकते हैं, हाइड्रेशन, ब्राइटनिंग, स्किन रिपेयरिंग का काम, ये सारी चीजें हम लोगों को मिलती है, तो इस तरह से ये हमारे बेनिफिशियल है। ओके, अब इसके अंदर का इंग्रेडिएंट जो देखा, अब क्या है देखिए, प्रीमियम हाइड्रेशन फॉर टायर्स। प्रीमियम का वर्डिंग वैसे तो सबको पता है, प्रीमियम मींस हाई क्वालिटी, राइट? तो यहाँ पे सिंपल हाइड्रेशन नहीं है, एक प्रीमियम लेवल का हाइड्रेशन, जिसके बोलते हम लोग सबको अवेलेबल नहीं होता, तो सारे प्रोडक्ट्स में नहीं होता, बट इस प्रोडक्ट में हमारे पास प्रीमियम हाइड्रेशन लेवल है, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट वाला हाइड्रेशन, सिंपल वर्ड्स में। और ये क्यों है? उसकी वजह है इसके इंग्रेडिएंट। सबसे पहला वाला इंग्रेडिएंट हमारे पास अवेलेबल है ब्रीच सैप। जैसे मैंने पहले भी बोला था, ब्रीच सैप है ना, वो हमारे स्किन को कूलिंग का इफेक्ट देता है, ठंडक देता है, कामनेस देता है। ओके, और ये होता क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंट है, एक ट्री के अंदर का ट्रांसपेरेंट जेल है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है और जिसमें नेचुरल शुगर इंक्लूड है। इवन सेंसिटिव स्किन हो या तो ड्राई स्किन हो, दोनों के लिए वो उतना ही बेनिफिशियल, बराबर है। स्किन को स्मूथ करना मतलब सॉफ्टनेस फील देता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, फ्रेशनेस फील देता है, इस तरह से इसके अपने बेनिफिट है। अभी फ्रेशनेस में जैसे कि आप कभी गांव में या तो एक फॉरेस्ट एरिया में जाते हो, तो वहाँ की एयर आपके स्मेल को भी फील होती है, एज वेल एज आपके स्किन को भी फील होती है। कभी आपने देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है, तो वो वाला फ्रेशनेस आपको इस प्रोडक्ट से मिलेगा, राइट? दैट इज अ ब्रीच सैप। फिर आता है विटामिन 3 फ्रूट एक्सट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज दिस विटामिन 3? विटामिन 3 होता क्या? एक्चुअल्स में देखा जाए तो विटामिन 3 है नेचुरली सी बकथॉर्न। इसको विटामिन 3 बोला गया है, आप नाम से ही समझ जाओगे। सी बकथॉर्न एक ऐसा ट्री है ना, वो एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी वो ग्रो होता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि -40 भी जाने दो या तो +40 भी जाने दो टेम्परेचर, ओके, तब भी ये जहां चाहिए वहां ग्रो हो सकता है। एंड इसका मेन बेनिफिट है, इसके जो फ्रूट्स है ना, ये विटामिन से भरे हुए रहते हैं, इसलिए इस सी बकथॉर्न को ना हम लोग विटामिन 3 बोलते हैं। तो इस विटामिन 3 के फ्रूट्स का इसके अंदर एक्सट्रैक्ट है, जिसके अंदर क्या क्या विटामिन है, जैसे कि विटामिन सी अवेलेबल है, विटामिन ई है, उसी के साथ ओमेगा इंक्लूडेड 369 का, विटामिन ए इंक्लूड है। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके के विटामिन इसके इंक्लूड है। और जब ये इस प्रोडक्ट में है, इसका मतलब ये आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। ओके, तो इस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। एक तो क्या बेनिफिट्स है? डीप मॉइस्चराइजर होने के बाद स्किन को ब्राइटनिंग करना, हमारे स्किन के ऊपर के जो रिंकल्स है, छोटी छोटी सुर्खियां बोलते हैं लोग, वो कम करना, हमारी स्किन को इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करना, राइट? तो इस तरह से विटामिन 3 के फ्रूट्स के आपके बेनिफिट है, राइट? अब आता है हमारा नेक्स्ट, ओरोमा, दैट इज अ फ्रेग्रेंस, स्मेल। क्या फील करते हो प्रोडक्ट को लगाने के बाद या तो प्रोडक्ट की बॉटल को ओपन करने के बाद? ओके, तो पहले तो देखते हैं, अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो स्मेल अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको ऑल्फैक्टिव फैमिली। अब ये ऑल्फैक्टिव फैमिली होता क्या है? ऑल्फैक्टिव का मतलब होता है कैटेगरी ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्मेल, सारे टाइप के स्मेल्स की यहाँ पे इंक्लूडिंग है। जैसे कि कौन कौन से होता है? फर्स्ट वन, फ्रूटी स्मेल, जैसे कि स्मेल लाइक फ्रूट्स, जब आप फ्रूट्स को कट करते हो तो अलग से स्मेल आता है, तो स्मेल लाइक अ फ्रूट इज नोन एज अ फ्रूटी स्मेल। उसके बाद है फ्लोरल, स्मेल लाइक अ फ्लावर्स वाला स्मेल। देन वुडी स्मेल लाइक अ वुड, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं चंदन का लकड़ा रहता है, बराबर ना, जैसे कि सैंडवुड, उसको सैंडवुड बोलते हैं, तो उसका एक अलग से स्मेल होता है, दैट इज स्मेल लाइक अ वुड। फिर आता है फ्रेश ग्रीन एरिया, जहाँ पे आप फॉरेस्ट में जाते हो तो वहाँ का एक स्मेल आपको अलग से फील होता है। एंड ओरिएंटल स्मेल का मतलब है रिच एंड स्पाइसी स्मेल। तो ये अलग अलग स्मेल्स है, उसमें से फ्रूटी, ग्रीन एंड फ्लोरल, तो ये 3 फ्रूट्स का स्मेल है इसमें। फ्लोरल मतलब एक फ्लावर्स के भी कुछ स्मेल्स इंक्लूड है, एज वेल एज ग्रीनिश, मतलब जैसे लीव्स, या तो आप कहीं ग्रास एरियाज में जाते हो तो वहाँ का स्मेल भी इसमें इंक्लूड है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे स्केल के ऊपर तो आपको एक पिरामिड दिख रहा है। इस पिरामिड का जो ऊपर का लेयर है ना, दैट इज नोन एज अ टॉप नोट। अब ये टॉप नोट क्या इंडिकेट करता है? ये आपको समझाता है कि जब आप उस प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो फर्स्ट जो आपको स्मेल फील होता है वो है लेमन, लाइम एंड मैंगो। ये आपका फर्स्ट स्मेल है जो शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा, दैट इज अ टॉप नोट। फिर आता है हमारा मिडल वाला लेयर। मिडल वाले लेयर में क्या है? एप्पल, जास्मिन एंड फ्लोरल, मतलब कुछ फ्लावर्स है, कुछ फ्रूट्स है।
उनका स्मेल आपको फील होगा एंड ये स्मेल आपका थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद। एंड लास्ट पर होता है आपका बेस नोट। ये जो बेस नोट है ना, ये एक वुडी स्मेल है और ये लॉन्गेस्ट टाइम के लिए चलता है। सबसे ज्यादा टाइम पे आपको फील होने वाला स्मेल ये लास्ट स्मेल रहेगा। ओके, अब आता है हमारा इसको कैसे यूज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना चाहिए। सिंपल बोले तो हमारे पास दो प्रोडक्ट है। फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है कैप्सूल एसेंस। इसको यूज करने से पहले आपको आपके स्किन को क्लीन करना बहुत जरूरी है। क्लींजिंग होने के बाद विद द हेल्प ऑफ द अपना डीप क्लींजर एज वेल एज फोम क्लींजर, इन दोनों प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आप ये प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो, दैट इज अ कैप्सूल एसेंस। कैप्सूल एसेंस अप्लाई करने के लिए फेस को क्लीन कर लेना, फिर आप अपने फिंगर टिप पे इस प्रोडक्ट को लेके 3-4 ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू सफिशिएंट क्वांटिटी आप आपकी स्किन को इनको अच्छी तरह से मसाज कर सकते हैं। बराबर है। मसाज थोड़ा जेंटली संभाल के, मतलब धीरे से करना है। मसाज के भी अपने बेनिफिट्स हैं, वो मैं बताऊंगी। एंड उसी के साथ जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट अप्लाई करते रहो, थोड़ा मसाज कर दो तो प्रोडक्ट आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड एब्जॉर्ब होने के बाद आप सेकंड प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, दैट इज अ क्रीम। तो फर्स्ट प्रोडक्ट की वजह से आपको मॉइस्चराइजिंग मिल रहा है, हाइड्रेशन मिल रहा है एंड एज वेल एज आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, विटामिन E1। एंड जब सेकंड प्रोडक्ट आप अप्लाई करते हो क्रीम, उसको भी आपको ऐसे प्रोडक्ट ओपन करने के बाद 2 फिंगर टिप पे लेके आप अपने यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फिर अपने फिंगर टिप से, नॉट अ पाम, फिंगर टिप से आप बस अपने मसाज कर सकते। मसाज करते वक्त ना आपको फेस का स्ट्रक्चर फॉलो करना। अब ये फेस का स्ट्रक्चर होता क्या है? फेस का स्ट्रक्चर मतलब फेस की स्किन के ऊपर की लाइन। दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक अपवर्ड एंड एक आउटवर्ड। अपवर्ड मतलब क्या? ऊपर वाली साइड। जैसे कि आपने देखा होगा फेशियल करते तो यहाँ पे ना ऐसे मसाज किया जाता है, चिक के ऊपर अपवर्ड। यहाँ पे भी फोरहेड पे ऐसे मसाज किया जाता है, दिस इज अपवर्ड। इसके वजह से आपके रिंकल्स कम होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जो आपकी स्किन को ग्लो देता है, राइट। तो आपका चिक वाला एरिया है, फोरहेड वाला एरिया, इसमें आपका अपवर्ड मसाज होना चाहिए। इसका और एक बेनिफिट है, अगर आपकी स्किन सैगी है, लटकती है, तो वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। इस तरह से इसका मसाज होता है, राइट। और एक है आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब बाहर के साइड से, जैसे इसको आप ऐसे मसाज करते हो, बराबर है। ये नोज वाला एरिया, आईज वाला एरिया, ईयर्स वाला एरिया, देखो ऐसे मसाज करते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड सेगमेंट। तो ये फेस का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आप जब मसाज करेंगे तो ये आपका और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से दोनों प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट अप्लाई करके एक जेंटल मसाज देना है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर, एंड अल्टीमेटली यू आर गेटिंग ऑल बेनिफिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखते हैं आगे ये इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है। जैसे कि सिर्फ इसी नहीं, एटोमी के जितने भी प्रोडक्ट्स है उसकी खासियत ये है कि एटोमी के सारे प्रोडक्ट्स में कहीं ना कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है। तो ये टेक्नोलॉजी का मीनिंग ही पता है, साइंटिफिकली। कोई भी प्रोडक्ट एटोमी ने रैंडमली नहीं बनाया, कोई भी इंग्रेडिएंट लिए उसको किसी भी क्वांटिटी में मिक्स किया और प्रोडक्ट बना दिया, नॉट लाइक दिस। जो भी बन रहा है प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर एक्सट्रैक्शन, प्रॉपर रेशियो के साथ बनता है। और ये बनाने के लिए भी वो लोग एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है पूरे दुनिया। ये हमारा एक खास रीजन है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? हाइड्रो क्रिस्टल इमल्शन टेक्नोलॉजी। ये करती क्या है पहले वो देखते हैं। ये पॉलीमर नेटवर्क है, हमारे स्किन का इलास्टिसिटी एंड मॉइस्चर लॉक करने में हेल्प करता है, इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है, पॉइंट नंबर 1। उसी के साथ पॉलीमर नेटवर्क है जो हमारे स्किन को मॉइस्चर भी रखेगा, इलास्टिसिटी इंप्रूव करेगा, तो स्किन को फर्म करता है। फर्म मतलब लटक भी नहीं देता, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। दैट इज वी कैन से दैट हमारा ये फर्स्ट टेक्नोलॉजी हो गया। फिर आता है हम लोगों का हाई डेंसिटी लिक्विड, जो भी हमारे पास अवेलेबल है लिक्विड। तो ये लिक्विड क्या करता है ना, हाई डेंसिटी जो लिक्विड है वो हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे स्किन को लाइट फील कराता है एंड एज वेल एज बहुत इजीली हमारे स्किन में एब्सॉर्ब होता है। एब्सॉर्ब होने का मतलब आप समझते हो, बहुत इजीली हम लोग एब्सॉर्ब कर सकते हैं इसको, ये इसके बेनिफिट है। और इन दोनों का मिलकर बनता है हाइड्रो क्रिस्टल इमल्शन। इसके अंदर दो फेसेस है। फेज 1 एक कहता है हाईली न्यूट्रिएंट इमल्स है, इसके अंदर के जो भी इंग्रेडिएंट है बहुत हाईली न्यूट्रिएंट्स है, मॉइस्चराइजर स्टोरिंग करने की कैपेसिटी है, एंड ऑब्वियसली ये जो मॉइस्चराइजर आपने स्टोर किया वो उसको लॉक करने का भी काम करता है, कंटिन्यूअस हाइड्रेशन का इफेक्ट आपको मिलता है। तो बिकॉज ऑफ दिस, ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारे हमारे बेनिफिट्स। अब आता है नेक्स्ट वन, दैट इज आप देख सकते हैं परफेक्ट केयर फॉर द स्किन बैरियर टू मेंटेन द मॉइस्चर। सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन नहीं करता, जो मॉइस्चर आपने प्रोवाइड किया उसको लॉक करने का काम करता है। और ये लॉक करने के लिए हमारे पास है लैमेला स्ट्रक्चर। अब ये लैमेला स्ट्रक्चर होता है एक टेक्नोलॉजी की की है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, राइट। देन ये होता क्या है कि नेचुरल स्किन स्ट्रक्चर है
जो ऑयल लेयर्स में अवेलेबल होता है, फैट्स लेयर्स में अवेलेबल होता है, और ये हमें प्रोवाइड किया जाता है. बेनिफिट इज व्हाट? फिट इजीली टू द स्किन. स्किन के ऊपर बहुत इजीली फिट हो जाता है, हमारे स्किन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ऐसे बैरियर बनाता है एंड इजीली एब्जॉर्ब होने के लिए हेल्प करता है, राइट. तो फॉर्म ऑफ एक प्रोटेक्टिव लेयर रहेगा, जिसके वजह से जो लिक्विड क्रिस्टल्स अवेलेबल है, तो एक लिक्विड क्रिस्टल हमारे स्किन के ऊपर जनरेट होते हैं और प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं. प्रिवेंट द मॉइस्चराइजर लॉस. मॉइस्चराइज जो अपने ऑलरेडी स्किन को किया था उसको लॉस होने में रोकता है, प्रिवेंट करता है, राइट. डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, स्किन के अंदर तक जाके हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड कीप योर स्किन सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड. एंड इन्हीं के रीजन की वजह से हमारा स्किन सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड फील होता है. तो ये हमारे सारे के सारे बेनिफिट्स थे स्पेसिफिकली हाइड्रा ब्राइटनिंग केयर. ओके, नॉर्मली मैं आपको सजेस्ट करूँ कि इसको कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए वो तो देखा, बट व्हेन इट इज यूज. जब भी आप नॉर्मली एक डे रूटीन स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, उस टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि जब आप फेस वॉश कर लेते हो तो आफ्टर द फेस वॉश करने के बाद आपका टाइम आता है हाइड्रेशन टाइम, एंड तब आपको ये दोनों प्रोडक्ट यूज करना है, नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट. अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इसको मिलने वाला बेनिफिट आपको पूरा नहीं मिलेगा. आप हाइड्रेशन तो दे रहे हो बट सेकंड प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो वो लेयर लॉक नहीं हो पाएगा. तो आपके लिए दोनों बहुत जरूरी है, राइट. तो इसको यूज करना है फेस वॉश करने के बाद मॉर्निंग में. आफ्टर फेस वॉश यूज कीजिए, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन होगा एंड आपने स्किन को हाइड्रेशन लेवल तो दिया, मतलब स्किन का केयर तो किया. एंड इसी तरह से जब आप शाम को इवनिंग में घर पे आते हो और तब आपने समझ लो फेस को वॉश कर लिया, तब आप अगेन हाइड्रेशन के लिए आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो. मतलब डे में 2 टाइम आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो. क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए. बहुत ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो वेस्ट हो जाएगी एंड बहुत कम लोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो सफिशिएंट क्वांटिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि स्किन का केयर कैसे करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसके ऊपर ये सॉल्यूशन है हमारा, एयर कंडीशनिंग है, यूवी रेज है, एक्सेट्रा. बट स्किन का केयर करने के बाद उसको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी होता है. जब हम बात करते हैं स्किन के प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन करना मतलब हम क्या कर सकते हैं पहले वो भी समझ लेते हैं. ओके, अब देखो प्रोटेक्शन करना मतलब चीजों से हमें प्रोटेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन करना मतलब हम ये बोल सकते हैं, एक मिनट, कि हमारी जो स्किन अवेलेबल है, राइट, उस स्किन के अंदर अभी आपने जो हाइड्रेशन प्रोवाइड किया, अभी आपने जो लेवल मेंटेन करने का ट्राई किया, तो ये होने के बाद आपको ये सोचना है कि जो आप हाइड्रेशन लेवल लॉक दे रहे हो वो किस तरह से आपको उसका बेनिफिट सेव करना है, मतलब वी कैन से दैट किस तरह से आपको इसके बेनिफिट प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो इसके बाद मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट, अगेन सनस्क्रीन. आप सभी को वैसे पता चला होगा कि हम लोग सनस्क्रीन के बारे में बात करेंगे और ये सनस्क्रीन करता क्या है वो भी हम लोग देखेंगे. ओके, बस मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे. ओके, अब हमने एक तो देख लिया स्किन का केयर कैसे करेंगे, पर उससे के साथ जरूरी होता है कि ये जो केयर किया उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, संभालेंगे कैसे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब सनस्क्रीन की बात आती तो आप सोचेंगे कि सनस्क्रीन क्यों चाहिए. Recording stopped. ओके, वैसे तो सबको पता है कि बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बोला था कि Recording in progress. आवाज क्लियर आ रहा है सबको? ओके, ठीक है. जैसे मैंने बताया था कि बिकॉज ऑफ सनराइज बहुत सारे यूवी रेज पास होते हैं. ओके, बट यूवी रेज में कौन कौन से यूवी रेज है, जैसे कि यूवी रेज ए, यूवी बी एंड यूवी सी, ये 3 टाइप के रेज होते हैं जो सन एज वेल एज आप अगर किसी आर्टिफिशियल लाइट में बैठते हो तो उनमें से भी ये रेज पास होते हैं. और ऑब्वियसली इन रेज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके स्किन के ऊपर आता है. क्या होता है वो भी देख लेते हैं. यूवी ए रेज एंड बी रेज को थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं यूवी सी रेज. यूवी सी रेज ना एक्चुअली एक्स्ट्रा डैमेज कर, बहुत एक्सट्रीम डैमेज करने वाली है. बट आप हम लोगों का नसीब इतना अच्छा है, समझ लो कि यूवी सी रेज ना ओजोन लेयर में ना
वहां पे आके वो रिटर्न रिवर्स होती है या तो वहां पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यूवीसी रेस ओजोन लेयर के अंदर आपके शरीर तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए उस रेस से आपको कोई डैमेज नहीं, राइट। तो मेन डैमेज का रीजन है यूवी ए रेस एंड यूवी बी रेस, और इनसे आपको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, राइट। अभी ये यूवी ए रेस एंड बी रेस तो अपनी डैमेज करिए, आपने देखा होगा कि आपके पुराने जमाने के आपके नाना नानी दादा दादी ये कोई सनस्क्रीन यूज नहीं करते थे एक्चुअल, बराबर ना। फिर अभी जरूरत क्यों है? ऑब्वियसली अभी जरूरत इसके लिए है कि बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, पोल्यूशन, इनके वजह से ओजोन लेयर डैमेज हो चुका है, और इसी के वजह से ये सारे के सारे लेयर जो भी हम लोग बोलते हैं यूवी रेडिएशन ए बी, ये सारे एंटर कर रहे हैं अर्थ के ऊपर एंड वो आपके स्किन को डैमेज कर रहे हैं। तो नाउअडेज इट इज अ वेरी इसेंशियल टू यूज अ सनस्क्रीन। आप सोचोगे हम लोग सनस्क्रीन यूज नहीं करेंगे तो आपका जो स्किन केयर का प्रोसेस है उसका वैल्यू कंप्लीटली जीरो है। इवन डॉक्टर सेज दैट, डॉक्टर ने कहा है कि एक 6 मंथ का बेबी है, बराबर ना, तो 6 मंथ्स के बेबी को भी आप 6 महीने के बाद न्यू बॉर्न बेबी आफ्टर 6 मंथ आप उसको सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। बस उसका जो लेवल है वो आपको चेक करना है डॉक्टर के कंसल्ट के साथ, डायरेक्टली कोई भी सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर सकते। ओके, तो इस तरह से इवन आप वी कैन से दैट आप इसी रूम में बैठे हो, अदरवाइज आपको लगता है कि हमारा जो नेचर है बहुत क्लाउडी नेचर है तो उसमें तो रेज नहीं आ रहा है, बट वहाँ पे भी आपकी रेज जनरेट होती है और आपकी स्किन को डैमेज करती है। तो वैसे तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमारी स्किन डैमेज होने का एक नॉर्मल रीजन है, 90% लोगों का रीजन है कि वो बिकॉज ऑफ सन रेज डैमेज होती है, बराबर ना। अप टू 80% जो हार्मफुल यूवी रेज है वो हमारे स्किन को डैमेज करी है, वो एजिंग का रीजन है। और एक्चुअल में देखा जाए तो ना विद इन 2 आवर्स आपको ये सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, नॉर्मली आफ्टर 2 आवर्स यूज करना चाहिए, और इस सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना जरूरी होता है बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, और आजकल के सनरेज इतने हार्ड है, इतने टच करते हैं आपके स्किन को ना कि ऑलमोस्ट नाउअडेज आपके एज के 18 साल तक अपनी लाइफ का 80% सनरेज ना आपने ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, आप समझ रहे हो कितनी इंटेंसिटी है सन रेज की। तो हमें हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सनस्क्रीन यूज करना ही पड़ेगा। जब आप सनस्क्रीन यूज करेंगे तो कैसा होना चाहिए? वाटर रेसिस्टेंस होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड थिंग, इसका SPF मिनिमम 30 और हायर होना चाहिए, जितना मैक्सिमम रहेगा उतना वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, उसी के साथ कि ऐसा सनस्क्रीन आप यूज करेंगे कि जो आपको यूवी ए रेज एंड यूवी बी रेज इन दोनों से प्रोटेक्शन देगा। तो जब आप मार्केट में जाते हो, सनस्क्रीन सुनते हो, सोचते हो, या तो आप एटॉमिक का सनस्क्रीन यूज करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने बेस्ट क्वालिटी का सनस्क्रीन परचेस कर सकते हो। यस और नो? तो ये सारी सिचुएशंस है कि ये सनस्क्रीन आपको, ये सारे रिक्वायरमेंट के सनस्क्रीन आपको यूज करनी चाहिए। देन मॉइस्चराइजर विद SPF है तो उसका मॉइस्चराइजिंग लेवल क्या है, और मॉइस्चराइजर है तो हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, पंप रखता है, ये भी इसके बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। अभी अगर हम एटॉमिक सनस्क्रीन की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सनस्क्रीन अवेलेबल है इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे SPF 50+ एंड PA ट्रिपल+ लेवल का सनस्क्रीन हमारे पास है। ये SPF एंड PA क्या होता है वो हम देखेंगे, बट हमारे पास का जो ट्यूब सनस्क्रीन है उसमें 2 कलर्स आते हैं, व्हाइट एंड बेज का। ओके, अब ये किस तरह से बेनिफिट देता है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है वो भी देखेंगे। ओके, ये सबसे बहुत पहली जरूरी बात, यूवी प्रोटेक्शन, SPF 50+ एंड PA 4+। अब जैसे मैंने बताया था कि यूवी रेज हमारे 2 होते हैं, यूवी रेज A एंड यूवी रेज B। यूवी ए रेज है ना वो हमारे स्किन के ऊपर अंदर तक डीपली पेनिट्रेट होते हैं, डीपली मतलब अंदर तक जाते हैं और हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। इसके वजह से बैड पैचेस, स्पेसिफिकली स्किन कैंसर होने के भी चांसेस है। ओके, एंड इसी के साथ जो यूवी बी रेज है वो आपका ये जो ऊपर का लेयर है एपिडर्मिस लेयर, उसको डैमेज करते हैं, मतलब टैनिंग होता है, डार्क पैचेस आते हैं, ये इनके वजह से होता है, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, दैट इज अ सनस्क्रीन। अब SPF क्या होता है वो देखेंगे। SPF stands for sun protection factor for the UVB rays। ये जो है ना वो UVB rays के लिए यूज किया जाता है। अब ये sun protection factor, अब इसके आगे नंबर देखो, SPF 50, तो 50 is 1। जब SPF 15 रहेगा 15, तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है नॉर्मली 93% रेज से, जो रेज आ रहे हैं डैमेज करते हैं उसमें से 93% प्रोटेक्शन देता है। अगर SPF 15 यूज कर रहे हैं तो अगर आपने SPF 30 यूज किया तो 97% रेज से प्रोटेक्शन देता है, बट अगर आपका SPF 50 है 50 तो आप